So today we are going to start a new chapter, chapter number 12, sources of energy. हमारे लिए vehicles के लिए जैसे in a form of fuel, हमारे लिए in a form of food, plants के लिए in form of sunlight. जो भी energy मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है means उसके sources. Okay, source means कहाँ से वो आ रही है वो हम आज पढ़ेंगे कुछ ज़्यादा deep पे. Okay, all of us take food for survival and growth of our body. Okay, body की growth के लिए और survival के लिए यहाँ पर हमें food जरूरी होता है. Vehicles like motorcycles, tractors, buses, trucks, ships, aeroplanes और सारे automobiles के appliances को यहाँ पर food fuel चाहिए, require fuel for the running. Okay, even for the cooking food we require food. Okay, we require fuel. Fuel के बिना हम cooking भी नहीं कर सकते. Do you know what is important which you get from a food from or the fuel? Okay, fuel कहाँ से आता है आपको पता है? Yes, you are right. It is the energy. Okay, हम food से और fuel से क्या मिलता है? Energy. Okay, it is the energy. From the time you wake up to the time you go to the sleep at night, सुबह से लेकर शाम तक energy plays an important role in your life. Okay, energy आपके life में एक important role play करता है. Energy is important in everyone's life whether you notice or it not. Okay, आप उसे notice कर रहे हो या फिर ना करो. Without sufficient energy, people face difficulties during the day-to-day work life. Energy के बगैर वो अपनी day-to-day activities, day-to-day work, day-to-day jobs में यहाँ पर वो difficulties face करते हैं. Without sufficient energy, okay, all forms of energy including solar energy, light energy, mechanical energy, nuclear energy, and the energy of body are important to us. Okay, solar energy से लेकर nuclear energy तक हमारी सब में energy of our body requires important to us. Okay, सभी important है हमारी body के लिए. The energy of your body enables you to talk, move and walk. Okay, और any other activities करने के लिए भी आपको enables करती है, आपको energy provide करवाती है. Is it possible to do any task without energy? क्या possible है energy के बिना कोई task को perform करना? The basic question is from where do you get all energy we need? हमें जितनी भी need है energy की वो हमें कहाँ से मिलती है? In this lesson we will learn about the different sources of energy, their importance and limitations. Okay? Energy की जो भी importance है, sources है और limitations क्या-क्या है different sources की वो हम देखेंगे. We will also learn about the energy crisis and how and why it came about. Okay, it came about. वो आप crisis की भी बात करेंगे और कैसे वो crisis आ सकते हैं और आए हैं. The ways and means of saving and conservation energy in your daily life and we will also discuss in this lesson. Okay, तो जो conservation है energy का वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा heavy topic है कि कैसे conserve करें different ways, different technologies. उसी को solely responsible मानती है for existence of human being. अगर हम conserve नहीं करेंगे तो we won't exist. Okay? Define energy. Okay, these are the objectives. Okay, so we are going to start our very first topic, that is energy and introduction. What is energy? Okay? Energy is a very common word frequently used in our day-to-day life. In day-to-day life में energy word बहुत बार हम use कर रहे हैं. Energy is defined as ability to do work. Okay, energy is ability to do work is known as energy. We require energy for all type of activities, including the activities within our body, with our body and with other bodies. Okay, हमारी body के अंदर, हमारी body से और हमारी body के साथ जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो सब में एनर्जी चाहिए. When we say a body has energy, it means it is capable of doing work. अगर हम कह रहे हैं कि बॉडी के पास एनर्जी है तो इसका अल्टीमेटली मीनिंग वो हुआ कि बॉडी कैन परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज और कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क. Look around, you will find countless examples where energy is used to work. Engines uses energy of its fuel to move car along. A battery stores energy to need to switch on the radio or tape recorder. The heavy flow of water tanks can break the bank of river as it also has energy in it. Okay, जो कि पानी में भी यहाँ पर energy है. Similarly, wind also possesses energy, also carries enough energy to shake the trees. Trees को भी वो हिला देता है. That's why wind also possesses energy. Importance of energy in our life. Okay, what is the importance of energy? Energy plays a very vital role in our lives, providing comfort, increasing productivity and allow us to live the same way we want to. Okay, energy हमें comfort provide करवाती है to do any task, कोई भी task करने में हमको ease provide करवाती है और
हम जिस वे में चाहे वैसी लाइफ मॉडिफाई करने में हेल्प करती है, the way which we are willing to live our life. Since the beginning of mankind, we have made the uses of wood, water, fossil fuels as a means of heating and making machine works. Okay? हमारे प्रिमिटिव लाइफ में, हमारे पहले की लाइफ में जो कि हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने फूड, wood, water, fossil fuels and heating while making machine works. Okay, there are the different ways उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जिससे रेलवेज हो गया जो कि हीटिंग पे काम करती. Almost for all type of activities we rarely rely on one or more than energy form. Okay, सभी टाइप के एनर्जी अब इंटरलिंक्ड हो चुकी है. ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई है जिसके मुताबिक हम एक या फिर दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी पे हम डिपेंडेंट रहे हैं. Amount of energy used by society is an indicator of its economic growth and development. Okay, तो यहाँ पर जितनी amount of energy यहाँ पर यूज हुई है वो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट हुई है. Without energy, even our body would not able to perform basic functions like respiratory, circulatory, digestive functions, to name a few. Okay, means हमारी एनर्जी, बॉडी के पास एनर्जी नहीं होगी तो ना वो सर्कुलेशन कर पाएगा, ना रेस्पिरेशन कर पाएगा, ना ब्रीदिंग कर पाएगा, ना डाइजेशन कर पाएगा. ओके, तो ऐसी सारी एनर्जी के सिग्निफिकेंस यहाँ पर बताए गए हैं. प्लांट्स would also be unable to complete the processes of converting carbon dioxide, water and minerals into food without the light in from the sun. Okay, तो सन के बिना यहाँ पर प्लांट भी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें वो फूड फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स से, तो वो भी उनको एनर्जी चाहिए सन से. ऑलमोस्ट ऑल मशीन्स यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स. जो भी यहाँ पर मशीन्स यूज होती है प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चर्स में, वो भी एक एनर्जी लेती है इन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, आवर सेल फोन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी सी अराउंड अस, the clothes we wear, the food we eat, the house we live in, the paper we write on, the vehicles we drive, all needed energy to be created and transformed from some natural sources for final product. Okay, तो कुछ भी reactions हो रही है जैसे कि ड्राइव कर रहे हैं हम, all the processes need energy. Okay, the solely कह सकते हैं कि all processes need energy from breathing to excreting. Okay, all the industries and factories run on electricity. Various forms of energy. Okay, तो कौन सी forms है जिससे हम energy gain कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर करते थे. In our daily life, we use different form of energy such as heat energy, light energy, mechanical energy, electrical energy, chemical energy, and sound energy. Okay, the most common forms of energy are heat, light, and electricity. We use all these forms of energies for different type of work. इन सारे एनर्जी को different type of works के बेस पर यहाँ पर हम एनर्जी गेन करते हैं. As per requirement, one form of energy can be converted into another form of energy used by specific type of device and processes. Okay, तो यहाँ पर one form to another form convert करने के लिए प्रोसेसेस ऐसी और मेथड डेवलप की गई है जिसकी वजह से अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है और हमें साउंड एनर्जी चाहिए तो वी कैन कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी वाया स्पीकर. ओके, अगर हमारे पास विंड एनर्जी है और अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो हम वाया विंड मिल्स हम उसे ट्रांसफर कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर वो एक रूल फॉलो हुआ था. ओके, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred from one form to another form. Okay, वो हमें याद रखना है. It can be easily seen that some of energy can be replenishable in a short period of time. Such energy sources are transferred. They are renewable energy source. Okay, मेन एनर्जी को यहाँ पर दो टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट is renewable and another one is non-renewable. Whereas the energy sources that we are using up and cannot be regenerated in a short period of time are known as non-renewable. Means हम ऐसे एनर्जी यूज कर रहे हैं which cannot be, we can renew नहीं कर सकते in a short period of time में. That energy is known as non-renewable. All the sources of energy can be divided into two categories. जो भी हमारा सोर्स है एनर्जी का उससे हम two divided category में डिवाइड कर सकते हैं. First is renewable and other one is non-renewable.
So here we are finished. We finished the end up with the topic 12.1.2. Okay, the 12.1 topic यहाँ पर हमारा finish हुआ and other one will see another further topics. So our next topic is a non-renewable source of energy. Previous topic में हमने देखा कि what is energy. Okay, energy क्या है? Ability to do work is energy or importance of energy in our life to perform any activity starting from breathing to digesting circulation. सभी के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए और कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए मूवमेंट ऑफ हैंड, लोकोमोशन मूवमेंट के लिए यहाँ पर एनर्जी जरूरी होती है. और हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एनर्जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. ओके, जिसे हमने देखा वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ओके, जिसे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में देखा हमने हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेट्रा, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी. लेकिन उन सारी एनर्जी को यहाँ पर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, रिन्यूएबल, एंड द सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि नाम से पता चल रहा होगा. फर्स्ट इज नॉन, मींस नॉट एबल टू, एंड renew. Renew means use again. Energy, source of energy. Okay, ऐसे एनर्जी सोर्स जिसको हम एक बार यूज करने के बाद में दूसरी बार यूज नहीं कर सकते. ओके, दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. You know that petrol and diesel extract from crude oil. Okay, जो crude oil है हमारा, crude oil, वो यहाँ पर extract crude oil में से बनता है यहाँ हमारा जो fuels है हमारी automobiles के लिए, जो कि हो गया हमारा पेट्रोल एंड डीजल. ओके, तो पेट्रोल और डीजल यहाँ पर extract होता है crude oil से, are commonly used to run different kind of vehicles such as car, buses, tractors, trains, aeroplanes, etc. ये सारे appliances पे फ्यूल नीडेड होता है और वो फ्यूल यहाँ पर क्रूड ऑयल में से हमें मिलता है. सिमिलरली केरोसिन एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन लैंप एंड स्टोव्स. तो यहाँ पर जो केरोसिन और नेचुरल गैस है, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ लिक्विड एंड गैसियस वोलेटाइल फ्यूल्स जो कि हमने यूज करते हैं लैंप्स. ओके, तो लैंप हो जाता है लैंप. ओके, गांव में ऐसे लैंप रहता है जिसमें यहाँ पर चलता है लैंप और इसमें केरोसिन रहता है. लैंप एंड द स्टोव्स. ओके, जब गैस यहाँ पर डेवलप नहीं है जिस जगह पर, ओके ओके, गैसेस अभी नेचुरल गैसेस की लाइन भी अभी डेवलप हो गई है. तो जहां पर एलपीजी नहीं पहुंच पाता, ओके, सिलेंडर, गैस के सिलेंडर, वहां पर यहाँ पर स्टोव्स यूज करते हैं. स्टोव्स जो केरोसिन पे चलता है फॉर मेकिंग देयर फूड. ओके, तो स्टोव्स यू शुड क्वांटिटी, यू शुड आल्सो नो दैट क्रूड ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस. क्रूड ऑयल, coal and natural gas occurs in a limited exhaustible quantity. Exhaustible means खत्म हो जाएगी, means crude oil, coal and natural gas जो भी हमारे हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और उनका यूज अगर कंटिन्यूअस हुआ तो मे बी इन फ्यूचर वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे. दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और यूज अगेन. ओके, जो शॉर्ट पीरियड टाइम में रीजनरेट नहीं हो सकते, वापस हम गेन नहीं कर सकते एंड और यूज्ड अगेन, वापस यूज नहीं कर सकते अगेन एंड अगेन. Hence they are called non-renewable source of energy. इसकी वजह से उन्हें कहा गया non-renewable source of energy. In fact, that present we got most of energy from non-renewable source of energy. At present हम जितनी भी एनर्जी हम गेन कर रहे हैं, जहाँ से भी गेन कर रहे हैं, वो सब हम non-renewable source of energy से गेन कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोल्स, फॉसिल फ्यूल्स हो गया. ओके, तो वैसे इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स, कोल्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. लुकिंग एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट, आज ही इतनी है तो कल तो पॉपुलेशन और ज्यादा होगी, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी उतनी ज्यादा होगी.
It is expected that oil and natural gas reservoirs may last for 30 to 35 years. Okay, तो 30 to 35 years तक ही यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस है जो क्रूड ऑयल वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. Similarly, the coal reservoirs may last longer than another 100 years. और जो कोल है जो कि अर्थ में से हम निकाल रहे हैं, अर्थ में से हम निकाल रहे हैं, वो कोल है वो अब नेक्स्ट 100 सालों में एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा. So we must use these non-renewable sources, energy sources, judiciously and avoid all wastage. Okay, judiciously means in a proper manner or avoid all wastage without any waste. Okay, radioactive elements like natural uranium are also non-renewable. जो यूरेनियम हम न्यूक्लियर एनर्जी गेन करते हैं जो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, वो भी वन टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल ही है. When the atoms of uranium are split into two or more parts, जो कि एटम है यूरेनियम का, they are split into two or more parts, दो या दो से ज्यादा पार्ट में तोड़ा जाता है, a large number of energy is released. Okay, large number of energy यहाँ पर रिलीज होती है and which can be used as generate electricity, और वो एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में यूज होती है. Let us now look into the details of fossil fuels as a source of energy. तो बेसिकली अब हम fossil fuels का टॉपिक हमारा fossil fuels पर है, तो उसे हम पढ़ेंगे. Fossil fuels a conventional source of energy, non renewable source of fossil fuel such as coal, oil, natural gas. मैं आपको fossil fuels एक इंडस्ट्री दिखाना चाहता हूँ. This is a fossil fuel industry. Okay, this is फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री, जिसमें यहाँ पर जो फॉसिल्स है हमारे जो कि बरीड डाउन अंडर द अर्थ थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर अगो, उसको हम निकालते हैं. जैसे कि बेसिकली दे कंटेन कार्बन, तो उसे हम निकालते हैं और जलाते हैं. ओके, वी बर्न देम, जलाते हैं, तो यहाँ पर हमें हीट एनर्जी गेन होती है और फिर उस हीट एनर्जी को हम दूसरे कोई मोड ऑफ एनर्जी में यहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं. तो दिस इज अ, कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल यहाँ पे जनरेट जो फॉसिल फ्यूल है उससे हम यहाँ पर हीट एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं, वो फैक्ट्री है यहाँ पर. तो आप देख रहे हो कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको जब हम जलाते हैं तो बेसिकली क्या है, कार्बन, तो यहाँ पर लॉट ऑफ पॉल्यूशन यहाँ पर फैल रहा है. ये सारा पॉल्यूशन है जिसकी वजह से हमारा पूरा बायोस्फीयर है वो यहाँ पर हार्म हो रहा है. ओके, दिस इज द फैक्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. Since the beginning of mankind, we have been using these fossil fuels to generate heat, light, electricity for various purposes. हम पहले से ही फॉसिल फ्यूल को जनरेट यूज कर रहे हैं फॉर जनरेट हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर वेरियस पर्पसेस. यहाँ पर बेसिक यूज यहाँ पर बता दिया फॉसिल. These are the primary source for generate electricity. Okay, fossil fuels में से generate electricity till date की जा रही है, and over 85% of energy demands are met by the combustion of fossil fuels. और 85% तक डिमांड जो भी है वो यहाँ पर fossil fuel के combustion से ही fulfill हो रही है. Carbon is the main constraint of this fossil fuels. Okay, carbon is the main constraint of this fossil fuels. Fossil fuels are excellent source of energy for transportation need. Okay, जो कि पहले जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज रहा था जो कि कोल वाली रेलवे थी, कोयले वाली ट्रेन्स थी, सेम उसी तरह यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में भी फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, फिर उस एनर्जी को यहाँ पर दूसरे कोई फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्टेशन की नीड्स यहाँ पर पूरी करता है. You may be surprised to know that approximately 1.9 billion tons of coal is burned in a year to generate electricity in the world. Okay, so total 1.9 billion tons coals को जलाया जाता है जिससे पूरे साल इलेक्ट्रिसिटी बनी रहे कंट्री में. A large amount of chemical energy is stored in the fossil fuel. Okay, so chemical energy combustion means just a chemical reaction. तो जो कि large amount of chemical reaction की एनर्जी है वो स्टोर रहती है fossil fuels में. This
stored chemical energy is converted into the various other forms such as heat, light and mechanical energy. You may be interested to know how fossils are formed. Okay, जो fossils है वो कैसे form? Millions of years ago, the remains of dead plants and animals were buried under the ground. Okay, वो अंदर दफन हो गए क्योंकि कुछ ना कुछ हुआ और वो ग्राउंड में दफन हो गए. Over the years, सालों बीतते गए, by the action of heat from the earth's core, जो कि बॉडी थी, जो कि डेड एलिमेंट ऑफ प्लांट्स हो गया, जैसे कि वुड हो गया या फिर हमारे एनिमल बॉडी हो गई, वो सॉइल के बीच में यहाँ पर दब गए और जो हीट, अर्थ की हीट थी, अर्थ के कोर की हीट, उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर हुआ रॉक और सॉइल का, ऊपर से प्रेशर नीचे से हीट, तो यहाँ पर दिस बरीड एंड वो डिकम्पोज हो गए और जो मटेरियल है वो कन्वर्ट हो गया फॉसिल फ्यूल्स में. ओके, मींस उसे सालों लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स को फॉर्म करने में. मींस आज से माने के 1.3 बिलियन इयर्स अगो अर्थ फॉर्म हुआ, तो माने कि 800 बिलियन इयर्स अगो प्लांट थे. ओके, ऐसा मान लेते हैं. तो उस टाइम पर जो भी यहाँ पर प्लांट्स जो बरीड डाउन हुए, तो इतने सालों बाद उन्हें हम निकाल रहे हैं इन फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल था, तो हमने देखा कि फॉसिल्स कहाँ यूज होता है, क्या एनर्जी कन्वर्जन में यूज होता है. The next one, the coal. Okay, next one is coal. So coal, here is the coal. Okay, ये हमारा coal हो गया, जिस हम there are various coal mines जो कि coal निकालती है ground में से. तो उसे हम पढ़ेंगे one by one. What are coals? How many types of coals? Significance क्या है coal की? Okay. Coal is formed in a way similar to the fossil fuel. Okay, जो fossil fuels है उसी तरह यहाँ पर coal होते हैं. It goes through a different process called coalification. Okay, तो यहाँ पर coal का coalification होता है. Coal is made up of decomposed plant matter in condition of high temperature and pressure. Okay, तो coal यहाँ पर form होता है decomposed plant matter. Plant matter means plant का body part. Okay, in condition of high temperature and pressure. Okay, high temperature and pressure, though it takes a relative shorter amount of time to form. Okay, तो means short time लगता है, fossil fuels ज़्यादा time लगता है. Coal is not a uniform substance. Either its composition varies deposit to deposit. Means coal में composition के base पर यहाँ पर different types के coal यहाँ पर divide किए गए हैं, further division किया गया है in based on the basis of the composition of carbon in it. Okay, कितना % कार्बन है उसमें. There are different types of coals such as peat, lignite, subbituminous and bituminous. So there are 4 types of coal: peat, lignite, subbituminous and bituminous. The first kind of coal is peat, which is merely a mass of dead and decomposing plant matter. Okay, तो means यहाँ पर the poorest coal is peat. Okay, the first time इसमें merely means थोड़ा सा ही mass of dead and decomposing material का matter होता है. Peat has been used as fuel in past. पहले वो fuel में use करते थे as an alternative to wood. Wood की जगह पर वो peat को burn करते थे. Next the peat becomes lignite. तो फिर okay, हम मान लेते हैं कि एक प्लांट था, एक ट्री था, ओके, एक ट्री था, वो एक ट्री था, वो अर्थ में परिणाम हो गया. ओके, मींस जो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल फॉर्म होगा वो पीट होगा. ओके, पीट आफ्टर सर्टेन इयर्स. ओके, आफ्टर सर्टेन इयर्स. अब उसको हम अर्थ के अंदर और टाइम तक डाले तो पीट बिकम्स लिग्नाइट. ओके, फिर वो पीट lignite form हो जाएगा. A brownish rock that contains recognizable plant matter and has relatively low calorific
वैल्यू। ओके, मींस यहाँ पर और जो बर्न हुआ अर्थ के हीट से, प्रेशर की वजह से और बर्न हुआ और ब्राउनिश कलर का रॉक टाइप फॉर्म हुआ जिसमें कंसीडरेबल और रिकॉग्नाइजेबल कंसीडरेबल प्लांट मैटर प्रेजेंट था, हैज अ लो रिलेटिवली लो कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, मींस उसमें लो कैलोरीफिक वैल्यू थी एंड लिग्नाइट बेसिकली द हाफ पॉइंट फ्रॉम पीट टू कोल। ओके, मींस जब पीट फॉर्म हुआ है उससे जब लिग्नाइट फॉर्म होगा तो ये जो टाइम होगा मान लेते 10 था, तो नेक्स्ट 10 साल में वो एक्चुअल कोल फॉर्म हो जाएगा। ओके, मींस दिस इज द halfway to the pole. The next phase is subbituminous, which is a shade of dull black with very little visible plant matter. Okay, तो यहाँ पर dull shade का रहता है, okay, और subbituminous कहते हैं and little visible plant matter, उसमें कुछ literally visible plant matter रहता है। This type of coal has less than ideal calorific value. Okay, तो ideal calorific value तो थोड़ी कम यहाँ पर calorific value रहती है। Calorific value means carbon की value, okay, less value. Okay, तो यहाँ पर subbituminous and the final one is bituminous. Coal is the best quality. Okay, bituminous coal is the best quality of coal. It is a jet black, very dense, brittle. This type of coal has very high calorific value, having very high carbon. So this is our bituminous coal. Okay, they are the black, brittle, hard. Okay. And have very high calorific value. This is the bituminous coal. Okay, this is bituminous coal. Generate. Okay, so here there is a paragraph which gives detail regarding the electrical energy, how electrical energy converted to from coal. Okay, you may be curious to know that how do we get electrical energy from coal. तो हम electrical energy में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे फॉर्म कर सकते हैं कोल में से? इट इज बेसिकली बाय मींस ऑफ कोल पावर प्लांट्स। तो कोल पावर प्लांट्स की हेल्प से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दिस पावर प्लांट्स फर्स्ट बर्न द कोल इन लार्ज फर्नेस क्रिएटिंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट। ओके, तो यहाँ पर कोल को इकट्ठा कर साथ में जलाया जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी हीट रिलीज होती है। दिस हीट इज यूज्ड टू बॉयल वाटर इन द बॉयलर्स and so it converted into steam. ओके, तो यहाँ पर हम मान ले, हम एज्यूम कर ले कि ऐसा कुछ होगा। ओके, तो यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे कोल रखे हैं, यहाँ से उसे जलाया जा रहा है। ओके, यहाँ से उसे जलाया जा रहा है, तो यहाँ से हीट जनरेट हुई। हीट, तो यहाँ पर और एक बॉयलर और एक कंटेनर जिसमें वाटर रखा है। ओके, वाटर रखा है, तो जब ये वाटर हीट होगा तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, मींस बॉयल होगा, हीट होगा। ओके, द स्टीम एक्सपांड causing the pressure to increase on in the boiler. The steam turbine is placed in the exit of the boiler. ओके, तो मींस ये यहाँ पर एक क्लोज्ड चैम्बर है जिसमें वाटर है और जब उसे हीट कर रहे हैं हम तो यहाँ पर स्टीम इकट्ठा हो रही है और बहुत ज्यादा स्टीम जब प्रोड्यूस हो गई तो यहाँ पर एज वी नोटेड जब गैसेस एक्सपांड होती है तो उसके सरफेस पर प्रेशर डालती है। ओके, तो ऐसा एक पूरा यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट कराया जाता है वाटर वेपर से और जब प्रेशर बढ़ जाए तब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जिट होगा जिसमें यहाँ पर टरबाइन लगाया गया होगा कि यहाँ पर टरबाइन होगा। तो जब वहां से जो प्रेशर हम निकालते हैं, जब यहाँ से गेट ओपन किया तो वहां पर बहुत प्रेशर के साथ यहाँ से वो स्टीम निकली, वाटर वेपर्स निकले जिसने टरबाइन को घुमाया और जो टरबाइन घूमा वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। A steam turbine is placed at the exit of the boiler so that the moving steam rotates the turbine. In this process, the energy from the moving steam gets converted into mechanical energy. The rotating turbine is used to spin against a magnet. Means यहाँ पर generator use किया गया with spin magnet inside to power a power generator. This generates a large amount of electromagnetic that causes the spin magnet. This way the electricity is generated. So the generated electricity is then sent to the नेशनल पावर ग्रिड फ्रॉम वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट एरियाज। ओके, तो वहां पर स्टोर किया जाता है नेशनल पावर ग्रिड में
और एज पर नीड उससे फिर बाकी के नीडेड जगहों पर डिफरेंट एरियाज पर यहाँ पर भेजा जाता है। तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम कोल। The next is a natural gas. Next is natural gas. Natural gas is nothing but we used for a common cooking. Okay, तो natural gas हो गया हमारा ये। Okay, तो हम cooking में use करते हैं natural gas. Okay, natural gas जो कि हम घर पे use करते हैं। There is a natural gas. Natural gas is another major source of energy in our country. Oil and gases fields have been found anywhere on the planet except the continent of Antarctica. Antarctica छोड़ के बाकी सारी जगह पर oil और gases को आपको sources मिल जाएंगे. This field always contains some gas, but this natural gas, that is methane, does not take nearly a long to form. It's बहुत कम time में form हो जाता है. A natural gas is also formed in independent deposit with the ground as well as from another source too. Okay, natural gas is also found in independent deposit with the ground as well as from another sources too. Ground से भी हमें मिलता है और another source से भी हमें मिलता है. Methane is a common gas found in the spans. It is also a byproduct of animals' digestive system. Okay, तो मीथेन यहाँ पर एक common gas है जो कि स्वयं से जहाँ पर गाय भैंस रखते हैं उनके उसमें से मिलता है एंड एनिमल के डाइजेस्ट सिस्टम का भी एक बाय प्रोडक्ट है। ऑल्दो नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल और बेसिकली नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल, इट इज अ क्लियर बर्निंग देन गैसोलीन। ओके, इट इज द क्लीनर बर्निंग, मींस गैसोलीन से अच्छी तरह चलते हैं बट डस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड द मेन ग्रीन हाउस गैसेस। तो नेचुरल गैस है यहाँ पर वो जब जलते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, means the main greenhouse gas. Means greenhouse gas है तो means उससे global warming फैलेगा. Like petrol and diesel, the natural gas is also finite source. यहाँ पर natural gas भी finite source है, not indefinite. That is finite source means limited है, though available in large quantities than form. क्योंकि अभी large quantity में present है लेकिन in future they are going to exhaust. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो ऊपर जितने भी हमने पढ़े उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स जो कि लिमिटेड रहते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखेंगे। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी हैज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यहाँ पर एडवांटेज भी थे और डिसएडवांटेज भी। लेट अस टेक एन एडवांटेज फर्स्ट। ओके, हम फर्स्ट एडवांटेज देख लेते हैं। Generation of energy from the fossil fuel technology wise is easy and relatively cost effective. cheap है, easily available है और generate electricity भी easy है। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है इसकी वजह से। fossil fuels have a very high calorific value. ओके, उसकी calorific value कार्बन कंटेंट की वैल्यू ज्यादा है, मींस ज्यादा एफिशिएंट है। fossil fuels can generate huge amount of electricity in just a single location. एक ही जगह पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है फॉसिल फ्यूल के हेल्प से। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक ऑयल एंड गैसेस टू द पावर स्टेशन कैन बी मेड थ्रू द यूज ऑफ पाइपलाइंस, मेक इट एन इजी टास्क। तो पाइपलाइंस के हेल्प से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करवाया जा रहा है जिसकी वजह से और उधर ट्रांसपोर्टेशन का एक पॉइंट पे यहाँ पर कैंसिलेशन आ रहा है। पावर प्लांट्स दैट यूटिलाइज गैस इज आर वेरी एफिशिएंट। एफिशिएंट का मीनिंग ये होता है कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं और हमें कितना आउटपुट दे रहा है। अगर हम 1 इनपुट दे रहे हैं और हमें 2 आउटपुट मिल रहा है, इट इज वेरी एफिशिएंट, वेरी एफिशिएंट। ओके, हम 1 इनपुट दे रहे हैं और 1 आउटपुट मिल रहा है, मींस कैन अफोर्ड। ओके, लेकिन हम 1 दे रहे हैं और यहाँ पर 0.5 मिल रहा है तो मींस वी हैव टू थिंक ऑफ इट, क्योंकि हम 1 दे रहे हैं और हमें हाफ आउटपुट मिल रहा है जिसकी वजह से। ओके, तो यहाँ पर वेरी एफिशिएंटली यूज किया है, दैट्स व्हाई इट इज हम जितना एफर्ट लगा रहे हैं, हम जितना इनपुट दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में हमारे पास इक्वल मिल रहा है या फिर ज्यादा मिल रहा है। The construction of power plants that work on the fossil fuels are relatively easy technology wise and they can be constructed in almost any location. Okay, तो यहाँ पर जो कि fossil fuel plants हो गए वो यहाँ पर easy है सभी जगह बनाने और कहीं भी लोकेशन पर हम डेवलप कर सकते हैं।
इफ यू लुक इनटू द डिसएडवांटेज, ओके, तो यहाँ पर हम जब हम डिसएडवांटेज देख रहे हैं ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वी फाइंड दैट द पॉल्यूशन इज अ मेजर डिसएडवांटेज। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा दैट पॉल्यूशन इज अ मेजर डिसएडवांटेज। यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, पॉल्यूशन जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारी एटमॉस्फेयर है हमारा वो पॉल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें ही अफेक्ट होने वाला है जो कि यूज करना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इट्स अ लॉट ऑफ टॉक्सिक गैसेस, ओके, एनी फ्लैश इन केस ऑफ कोल, अ फ्लाई ऐश मींस एयर में पार्टिकल ऐसे उड़ रहे होते हैं कोल के, जो कि हाँ जब हम उसे इंस्पायर कर ले, हम बॉडी के अंदर एंटर कर ले, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल रहती है। एंड लॉट ऑफ toxic gases are generated which cause pollution in atmosphere. These gases include carbon dioxide which traps the sunlight and cause global warming. Okay, यहाँ पर carbon dioxide भी mainly release होती है। Besides carbon dioxide, coal also gives off the sulfur dioxide which may cause asthma। यहाँ पर sulfur dioxide भी release हो रहा है, जो कि यहाँ पर एसिड रेन का एक मेजर कंटेंट रहता है। इसकी वजह से सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लिमिटेड, cannot be replenished। ओके, यहाँ पर जो सोर्स है, ओके, जहां से हम कोल को फॉसिल फ्यूल्स हम गेन कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, वो लिमिटेड है, cannot be replenished मींस वापस हम यूज नहीं कर सकते। The rate at which they are being consumed, the reservoir are sure to run out soon। जिस वे से जिस रेट से हम यूज कर रहे हैं, उसी रेट से अगर हम यूज करते रहे तो वो जल्द ही रन आउट हो जाएंगे, मींस खत्म हो जाएंगे। The extraction of fossil fuels including coal has resulted in the destruction of wide areas of land and has endangered the environmental base in some areas। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की है। Mining of fossil fuels includes coal is difficult and rated as one of the most dangerous jobs। Many times endanger the lives of miners। में जो माइनर है वो जो अंडरग्राउंड जाकर कोल्स को निकाल रहे हैं, उनके लिए डेंजरस जॉब है कोल माइनिंग, बिकॉज द हार्मफुल गैस, नीचे कौन सी गैस रिलीज होगी, कौन सी क्योंकि अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारी हार्मफुल गैस प्रेजेंट है, और कब कौन सी रिलीज हो जाए और क्या एक्सीडेंट हो जाए वो हम कह नहीं सकते। यूज ऑफ नेचुरल गैस कैन बी कॉज अनप्लेजेंट स्मेल इन एरिया। ओके, नेचुरल गैस जब लीक होता है तो पूरे उसमें अनप्लेजेंट गैस स्मेल फैल जाते हैं, व्हिच इज हार्मफुल। Do you know the particle formed on burning of fossil fuels are very dangerous। Okay, fossil fuel को burn करने से पार्टिकल उठते हैं, वो बहुत dangerous है। These small particle can exist in the air for definite period of time up to several weeks and can travel for several months। बहुत छोटे होते हैं, कुछ हफ्तों तक हवा में रहते हैं और कुछ माइल्स भी ट्रैवल कर लेते हैं। This particle sometimes smaller than 10 microns in diameter can reach deep in the lungs में जा सकते हैं। Particles that are smaller than this can enter the bloodstream, इससे भी छोटे जो ब्लड में एंटर हो सकते हैं, irritating the lungs, carry with them toxic substances such as heavy metals and pollutants। Those affected by these particulates could become affiliated when fetal asthma attack and also cause pulmonary disease। यहाँ पर हमारे बॉडी में एंटर होंगे तो उनके पॉल्यूटेंट ही कहलाएंगे और सेवरल डिजीज यहाँ पर कॉज करेंगे। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रन देयर होम्स। क्योंकि यहाँ पर जो आज की जो इलेक्ट्रिसिटी नीड है वो बहुत ज्यादा है। व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, मोर देन 80% ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम बर्निंग कोल। 80% एनर्जी यहाँ पर कोल की बर्निंग में से आ रहा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस की वजह से आ रहा है। These are called fossil fuels। जिसे हम कहते हैं fossil fuels because they formed from the remain of plant and tiny sea creatures that lived on the earth many years ago। जो कि creatures कहेंगे जो कि रहते थे, जो कि buried in the soil हो गए और fossils में convert हो गए। They include fuels made from oil such as petrol, diesel, fuels for jet planes। okay, तो jet planes का fuel किससे बनता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। मींस जब कोल बर्न करेंगे तो हमें सल्फर मिलेगा, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। और जेट प्लेन्स को जब बर्न होगा तो हमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा वही। ओके, तो यहाँ पर है ये दोनों हो जाते हैं फैक्टर्स फॉर केमिकल्स। ओके, ये दोनों साथ मिलकर एसिड रेन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है और एसिड रेन के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो अभी अभी डेवलप हो रही है, थोड़ी हुई है और डेवलप हो रही है, दैट इज एनर्जी फ्रॉम एटम और न्यूक्लियर एनर्जी। मींस जो भी हमारा जो न्यूक्लियस होता है, ओके, उससे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखेंगे आप पूरी प्रोसेस। Atoms of few elements such as radium, uranium, radium and uranium. Radium किसने इन्वेंट किया? मैरी क्यूरी। ओके, मैरी क्यूरी। And uranium act as a natural source of energy. Okay, they act as a natural source of energy. In fact, atoms of these animals spontaneously undergo changes in which the nucleus of the atom disintegrates. Okay, जो टू इसे हम कहते हैं एक्टिविटी। ओके, इसे हम कहते हैं एक्टिविटी जो कि वो स्पॉन्टेनियस चेंजेस में जाते हैं और न्यूक्लियस जो है वो टूटता रहता है, वापस फॉर्म होता रहता है और इससे एनर्जी रिलीज होती रहती है। लेट अस सी हाउ कैन एनर्जी फ्रॉम एटम, हाउ वी गेट, वी शुड नो द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस एवरीवेयर। वो सभी न्यूक्लियस में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड रहती है। The energy stored in the nucleus of atoms can be released by breaking a heavy nucleus such as uranium into two electrons. मींस जब वो यूरेनियम को हम तोड़ेंगे दो एटम में तो हमें एनर्जी मिलेगी। The splitting of nucleus of an atom and fragmented through a roughly equal in mass which is released in energy called nuclear fission. Okay, fission means तोड़ना, fusion means join होना। Okay, तो fission की वजह से large amount of each fission mass vanishes is released huge amount of energy as per Gram equivalent, most famous equation of the physics in the science, that is E is equal to mc square given by Einstein. Okay, where m is a missing mass, c is the velocity of light and E is equal to the energy, कितनी एनर्जी रिलीज होगी। When a free neutron strikes uranium 235 at a correct speed, it gets absorbed. A uranium nucleus on absorbent, a neutron becomes highly unstable and split into the nuclei of smaller atom, release high amount of energy। उससे हम देखेंगे यहाँ पर। Okay, it's bit blur है थोड़ा। Okay, तो ये न्यूट्रॉन है हमारा, this is न्यूट्रॉन और ये यूरेनियम का एटम है। जब यहाँ से वो अटैक करेगा तो इसका न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और इसका न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इससे स्प्लिट होगा लाइटर एलिमेंट, दो लाइटर एलिमेंट और उनके रिस्पेक्टिव न्यूट्रॉन्स, दो लाइटर एलिमेंट और उसके रिस्पेक्टिव न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी। ओके, तो ये एनर्जी को जब बाद में हम यूज करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। ओके, दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ गेनिंग द हाउ फिजन स्प्लिट यूरेनियम एटम। ओके, तो जो न्यूट्रॉन हो गया, जो यूरेनियम हो गया, तो यूरेनियम को कैसे स्प्लिट करता है और कैसे एनर्जी रिलीज करती है अब डिपेंड करेगा इसकी स्पीड पे। ओके, ये हो गया c² और इसके मास पे। तो mc² को जब हम करेंगे तो अब हमें मिलेगा कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी इसमें से। ओके, uranium 235 nucleus on absorbing neutron, जब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, becomes highly unstable and split into nuclei of smaller atoms, releasing a high amount of energy in the process. During this process, a few neutrons are also released. Okay, यहाँ पर दिख रहा है few neutrons. Okay, इसके neutrons भी release हो रहे हैं। Few neutrons are also released. During this process, few neutrons are also released. The neutron split other nuclei of the uranium. Okay, means as a in chain use करने के लिए जब फर्स्ट न्यूट्रॉन यूज करके हमने स्प्लिट किया तो ये जो न्यूट्रॉन निकले, अब उस न्यूट्रॉन को हम यूज करेंगे दूसरे यूरेनियम को स्प्लिट करने के लिए। ओके, मींस अ सीरीज ऑफ फिजन
takes place here and a large amount of energy is released. This reaction continues rapidly and is known as a chain reaction. Okay, in this process a large amount of energy is released. This energy is used for boiling water till it becomes steam. Okay, तो ये एनर्जी को हम यूज करेंगे बॉयल वाटर को बॉयल करने में और उससे जो स्टीम निकलेगी फिर उसे हम एनर्जी को एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. So steam generates is used to drive a turbine which helps in generating electricity. The fission reaction is carried out in a controlled and regulated manner. In nuclear reaction, else they would be exploded like bombs with uncontrollable chain reaction. अगर हम इस रिएक्शन को हम अगर कंट्रोल में यूज करें तो हम उससे एनर्जी बना सकते हैं. ओके, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन अगर ये रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो दे कैन एक्सप्लोड लाइक अ बॉम्ब विथ अ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. इन ऑर्डर टू कंट्रोल अ फिजन reaction, some of the neutrons released by reaction are absorbed by the control rods and boron and tellurium. Okay, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो रही है मींस एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि हमें बोरॉन और कैडमियम जैसे कि अदर कंट्रोल रॉड्स को लगाकर एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहना पड़ता है. In our country, nuclear reactors are functioning at Tarapur, Kalpakkam, Kota, Narora for generating electricity. Means India में भी they are well developed. If a nuclear chain reaction is uncontrolled, all the nuclei in a piece of uranium splits in a fraction of second, and this may cause a devastating explosion, such as those at the atom bomb dropped on the Hiroshima and Nagasaki in Japan by America. Means America ने जब हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर जो एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था, देयर इज नथिंग बट द स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूट्रॉन्स. ओके, तो न्यूट्रॉन्स से स्प्लिट हुए थे जिससे हमने एटम बॉम्ब कहा गया. एटम बॉम्ब कहा गया. ओके, यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. ओके, तो यूजेस क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स एज यूरेनियम फ्यूल्स used as consumed in fission. Okay, तो यूरेनियम के बिना न्यूक्लियर एनर्जी काम नहीं करेगी. That's why it is non-renewable source of energy. Hence, a non-replaceable. Nevertheless, nuclear energy has many uses. The energy produced in the nuclear reactor can be harnessed to produce electricity. Okay, हमने देखा electricity कैसे produce होती है. The nuclear energy also being used as power submarines and ship vessels driven by nuclear energy can sail for a long period having to refuel. Means अगर फ्यूल भी होगा लेकिन if फ्यूल खत्म हो गया तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी से यहाँ पर सबमरीन्स और शिप्स चलाई जाती. रेडियो आइसोटोप्स obtained by products in nuclear energy is used in medicine, agriculture and research. रेडियो आइसोटोप्स की फॉर्म हुए हैं जैसे कि यूरेनियम को थोड़ा और जो लाइटर एलिमेंट फॉर्म हुए, अगर वो डिजायर्ड हो गए तो उसे यूज किए जाएंगे मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड रिसर्च में. हैजार्ड्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि इफ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो क्या हो सकता है. तो वन साइड न्यूक्लियर एनर्जी सीम्स टू बी अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव में हम यूज कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड इट कैन आल्सो बी हैजार्डस. ओके, वो हैजार्डस भी साबित हो सकते हैं. और न्यूक्लियर रेडिएशन और रेडियोएक्टिव वेस्ट आर द टू मेजर हैजार्ड्स of company production of nuclear energy. Means what are nuclear waste? Because nuclear waste वो होता है जो कि after releasing हो गया, means split हो गया. न्यूक्लियस तो आगे यूज होते जाएंगे लेकिन वो जो लाइटर एलिमेंट हुआ उससे हम कहाँ वेस्ट को कहाँ पर डालेंगे. In the process of producing nuclear energy, harmful nuclear radiation may get accidentally get released. Okay, तो यहाँ पर रेडिएशन न्यूक्लियस है, आपने देखा कि वो कंटीन्यूअस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है और वापस जुड़ रहा है, फ्यूजन कंटीन्यूअस हो रहा है. तो उसमें यहाँ पर हार्मफुल रेडिएशंस रिलीज होती है. तो उस रेडिएशन एक्सपोज ना हो जाए कोई, इसकी वजह से उसे अच्छे तरीके से करना पड़ता है. एक्सीडेंटली लीक और रिलीज कैन पेनिट्रेट ह्यूमन बॉडीज, कॉज इम्पेरेबल डैमेज टू सेल. ओके, मींस वो न्यूक्लियर रेडिएशन अगर हमारे पर गिरे तो we cannot survive. Okay, for preventing this from beginning, nuclear reactors are covered with a thick shell of radiation absorbent material such as lead. Okay, तो यहाँ पर radiation absorbent material लगाए जाते हैं. However, accidental releases of this extremely harmful radiation
into the environment pose a constant threat to those inhabiting the surrounding areas. Perhaps you may be aware of two major accidents. आपको ध्यान में रखना चाहिए। In nuclear power plant, one at the 3 Mile Island, USA पर 3 Mile Island है उसके ऊपर, और दूसरा है चेरिबोनाय, a tank Soviet Union. Okay, the Soviet Union में एक nuclear power plant था, वहाँ पर हुआ था। The immediate devastation caused into accident through the release harmful nuclear radiation was huge and needful extent is yet to be assessed. Okay, यहाँ पर दो उसकी बात की गई है कि ये दो जगह पर ऐसा न्यूक्लियर रेडिएशन का धमाका हुआ। Another hazard relate to the problems involving disposal of harmful radiant waste is mainly spent fuels produced in a fission process. Okay, fission के लिए भी यहाँ पर fuel चाहिए। During the nuclear reaction, a number of harmful substances emitting nuclear radiation are generated. These substances are called nuclear waste. Means reaction के दौरान radiating substance यहाँ पर निकले जाते हैं जो कि radiation emit करते हैं, उसे हम कहते हैं nuclear waste. Presently, most of the nuclear waste generated in nuclear power plant is simply being stored underground in the controlled lead container. अब तक जितने भी nuclear waste यहाँ पर produce हुए हैं, उन्हें lead के containers में store किया जाता है। लेकिन जब हम ज़्यादा यूज करेंगे तो कहाँ store करेंगे? We have not yet been able to discover a safer and more satisfactory method for disposal. Nuclear waste को dispose करने के लिए अभी तक भी कोई better way नहीं मिला। There are more advantage of using nuclear waste over fossil fuels. Nuclear waste को क्यों use करना चाहिए fossil fuel पे? Unlike fossil fuels, the nuclear fuels is used as a nuclear power station do not burn. वो burn नहीं होते, pollution नहीं फैलाते। Radiation एक pollution ही है, लेकिन they can be controlled. Hence no waste gases are produced. Okay, कोई gas नहीं produce होती, जैसे acid rain हो गया, pollution हो गया, पूरा pollution हो गया, water pollution, land pollution. As compared to fossil fuels, nuclear waste is better. Small amount of fuel materials and high huge amount of energy. यहाँ पर यूरेनियम, एक यूरेनियम एटम हमें दिखता भी नहीं, उतना छोटा होता है और can liberate a high amount of energy. Okay, index at the end. This is the here we complete our topic. There is a non-renewable sources of energy, and this is the first one is this is a fossil fuel mines, जो कि यहाँ पर fossil fuel को burn किया जाता है, coal को burn किया जाता है, जिसकी वजह से heat release हो, heat को boil, water boil किया जाता है, steam produce करते हैं, वो steam को turbine घुमाते हैं. Okay, this is a coal, Indian coal. Next one is gas, and the last one is a nuclear energy. These are the set of images related to the non-renewable sources of energy which are much important here to get that and study in the various. Okay, तो यहाँ पर जो lighter element हुए हैं, ये जो lighter element यहाँ पर produce हुए हैं, this may be okay, this may be radioactive. जो रेडियोएक्टिव भी हो सकते हैं। ओके, ये जो लाइटर एलिमेंट्स फॉर्म हुए हैं वो रेडियोएक्टिव भी हो सकते हैं। मींस अगर ये रेडियोएक्टिव है तो ये कहलाएंगे न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट। ओके, तो ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है उससे हम आज तक एक लीड के कंटेनर में, ओके, दिस इज अ लीड, चारों ओर लीड और बीच में न्यूक्लियर वेस्ट रखते हैं। अगर ये गलती से एक्सपोज हो गया, ये न्यूक्लियर रेडिएशन निकली, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है तो वो उसको पेनिट्रेट कर जाएगा। समझ लो फिर आगे क्या होगा। ओके, तो एज न्यूक्लियर रेडिएशन के बहुत कम डिसएडवांटेजेस है यहाँ पर। डिसएडवांटेजेस तो है लेकिन कंपैरेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज़ फॉसिल फ्यूल्स आर स्प्रेड पॉल्यूशन इंक्लूडिंग एयर, लैंड, सॉइल, वाटर। ओके, तो यहाँ पर ये पॉल्यूशन अगेन एसिड रेन हो गया, एसिड रेन भी, तो उसके कंपैरिजन में अगर न्यूक्लियर वेस्ट है, अगर हम उसे ध्यान से यूज करें न्यूक्लियर वेस्ट को विद सर्टेन लिमिटेशंस एंड कंट्रोलर्स, तो हम उसे ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एज पर द ओके जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर न्यूक्लियर
एनर्जी फॉर्म करना इजी है और मोर प्रॉफिटेबल। ओके, तो ये हमारा टॉपिक 12 point something 1 12.2 over, and we will do the text at the end of the question chapter.